So this morning we are going to deal regarding human heart and under three respective headings: location, morphology, internal structure, followed by histology. So to before begin with the sequence of discussion, usually I would like to characterize a human heart with three prime statements. It is a muscular pumping organ of closed BVS with four chambered condition, completely four chambered condition, that is 2A 2V, followed by exhibiting and participating as natural battery EMF by exhibiting that myogenic tendency, and finally it has got the ability to receive both type of blood without mixing. That what make it as systemic heart. Now in order to justify the given statements, why not to begin regarding human heart? First of all, it has got a location, that is an what we could better called anatomic accommodation. Location, it has got an anatomic accommodation in the body where heart occupy a centralized mid-ventral position between the lungs. एक क्वेश्चन पैटर्न सारे चैप्टर मिला के यही बन सकते हैं कि व्हाट इज द परफेक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ रिस्पेक्टिव गिवन ऑर्गन्स, स्टेटमेंट वाइज किडनी के बारे में, लंग्स के बारे में, है ना, एड्रिनल ग्लैंड, किसकी क्या पोजीशन है, मतलब व्हाट इज करेक्ट अबाउट द एनाटॉमिक. इसलिए हर चैप्टर में हर सिस्टम का जो प्राइमरी पार्ट है, जैसे ये सिस्टम तीन ऑर्गन से बने हैं, दो ऑर्गन्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बाय द टाइम we are up to the last topic of the chapter where we are going to deal from today till next class. ये chapter complete हो जाएगा while dealing with heart and its electrochemical behavior, what heart is made up of and how it has been designed externally as well as internally with its histological aspect to perform a unique action of a characteristic contraction relaxation, what we characterize called systole and diastole. Now that regular rhythmic action of heart is performed and studied under the topic called cardiac cycle, and one cycle of heart represents one heartbeat. So there is a series of events which heart actually performs during that stipulated time period of 0.8 second, which we are going to analyze through a graphical presentation interpreted better outside the body by a technique called electrocardiography. So point to be noted, ये जो आपको एनाटॉमी हमेशा लिखवाई जाती है, थोड़ा सा आप रिकॉग्नाइज करो. चैप्टर मस्कुलर सिस्टम भी हमने पढ़ा, उसमें पूरी मसल्स पढ़ना मतलब ही अपने आप में ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना होता है कि क्या एक मसल है, उसको किस तरह से, क्योंकि तीन तरह के मसल्स थे, दो तो लेयर्स की तरह पाए जाते हैं, एक को जो है ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है in form of bundles by characteristic layering and packing called fascia, जिन्हें हम fascicles कहते हैं. क्या कहते हैं? तो वो ही एक्चुअली सो कॉल्ड मस्कुलर सिस्टम की उन बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स
मसल बंडल्स बनाते हैं, ईच मसल बंडल इज एन ऑर्गन। तो बॉडी में जो है सिस्टम मस्कुलर जो है वो बना हुआ है 639 मसल्स बंडल यानी ऑर्गन से, जबकि अभी अभी हम जिस सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, दो इट इज मेड ऑफ ओनली 3 ऑर्गन्स, अ लिक्विड ऑर्गन which is a modified vasculous heterogeneous composite tissue, yes or no? क्योंकि उस वो तो अपने आप में अलग अलग जगह से कंपाइल होके बना है, बट वॉट एवर सो मॉडिफाइड कनेक्टिव टिश्यू था। 3 क्लास यही साबित करने में चला गया। फिर एक क्लास हमने ये डेडिकेट किया कि व्हाट आर ब्लड वेजल्स, क्या वो यूनिक चैनलाइजेशन पाइपलाइन है जो कि बीवीएस को एक सर्कुलर नेचर देता है। कैसा नेचर देता है? एंड दैट टू डबल सर्कुलेशन, दैट टू, but that double circulation is being anticipated, supported, complemented by 4 chambered condition of heart, जो आज हम एक्सपीरियंस करेंगे अब से अगले आधे घंटे के बाद। तो आज का क्लास जो यूनिकली हमने लास्ट कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विच मेक्स द ह्यूमन बीवीएस एज वन ऑफ द वेरी वाइटल मेजर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी, एंड ऑलरेडी बीइंग मेंशन्ड कि आर्टरीज में ब्लड या ब्लड एज अ फ्लूइड हैज बीन चूजन बाय नेचर। क्यों? क्योंकि इस बॉडी में जो इतने सारे फ्लूइड्स थे, सारे फ्लूइड्स लिमिटेड थे, कंपोजिशन में भी उनकी यूनिक कंपोजिशन थी, वो ट्रांजिट नहीं कर सकते थे। ब्लड इज दी ओनली, अगर ब्लड की बात करें अमंग दी ऑल बॉडी फ्लूइड्स, जो मैंने डे 1 आपके सामने लिस्टिंग की थी, आईसीएफ, ईसीएफ, ईसीएफ खुद 3 तरह से बताए थे, ब्लड, लिम्फ एंड ऑक्सिलरी फ्लूइड। सब में से ब्लड को ही क्यों नेचर ने चुना है एज वन ऑफ द मोस्ट पिवटल ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड? व्हाई नॉट इट इज लिम्फ? जबकि एलवीएस पढ़ते हुए आप देखोगे कि लिम्फ तो ज्यादा सिग्निफिकेंटली काम कर रहा है ब्लड से, बट अपेरेंटली आंखों देखा वो दिख नहीं रहा, वो बात उतना सामने नहीं नजर आता। जबकि लिम्फ तो जस्ट ब्लड का डबल इन अमाउंट होता है। कहां 5 लीटर ब्लड है तो 11 लीटर लिम्फ होता है। तो लिम्फ हैज इट्स ओन कैरेक्टराइजेशन ऑफ सर्कुलेशन। वो एक ब्लाइंड एंड से नॉन सर्कुलर वे में मूव करते हुए शरीर के ब्लड को छोड़कर बाकी पूरे तरह के फ्लूइड्स को फिल्टर करके, ठीक है, बॉडी को एक यूनिक, है ना, बोलते हैं ना, सेकेंडरी रोल प्ले कराने में हेल्प करते हैं। एंड दैट व्हाट वी कॉल रेजिस्टेंस टू मेक द बॉडी फ्री फ्रॉम एनी डिजीज कॉजिंग रीजन। अंडर द टॉपिक इम्यूनिटी हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे और लिम्फ इस काम को बखूबी कैसे अंजाम देता है। तो माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज कि सब में से ब्लड की सबसे बड़ी खासियत है कि वो सर्कुलर वे में प्रेशर के साथ, इतना क्वाइट सिग्निफिकेंट प्रेशर के साथ बहता है। तो ब्लड का जो भी मूवमेंट है, मोमेंटम है, जो एक चैनलाइज्ड पाइपलाइन के अंदर हम महसूस करते हैं इन अ पैरामीटर कॉल्ड ब्लड प्रेशर, वो प्रेशर आता कहां से? बाय द पंपिंग एक्शन बाय द of the heart. So heart as a very pivotal component of BVS, true circulatory system closed type, और उसके लिए ह्यूमन या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ऑल मैमल्स एंड रेस्ट ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग मैमेलिया और उसमें भी ह्यूमन बीइंग, सबके शरीर में हार्ट को एक खास जगह मिला है इस काम को बखूबी यूनिफॉर्म वे से अंजाम देने के लिए। क्योंकि वो जो प्रेशर पंपिंग एक्शन से जनरेट करेगा फोर्स ऑफ पुश एंड पुल, हार्ट परफॉर्म्स बोथ। जबकि मसल बंडल्स जो होते हैं ऑलवेज परफॉर्म देयर एक्शन इन स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, नेवर इन रिलैक्सेशन। नाउ दैट व्हाट आई विल जस्टिफाई इन हिस्टोलॉजी ऑफ हार्ट मसल्स। 5 बातें लिखवाएंगे और वो 5 बातें यूनिक है, जो ना कि स्टेटेड में मिलता है ना अनस्टेटेड में, देयर बाय मेकिंग द कार्डियक मसल्स टू परफॉर्म दैट यूनिक एक्शन ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मेकिंग द हार्ट टू एक्ट एज अ ऑटो रिदमिक ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है? तो बहुत सारी चीज आएंगी और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का एक काफी कंसेप्ट रहेगा। यू विल यूज द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर्स, डाइपोल, है ना, हाउ इट बिहेव्स लाइक एन ईएमएफ, और फाइनली कैसे इंथोवेंस ट्रायंगल लॉ बॉडी में काम करता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे हमारा हार्ट पूरा काम करता है। तो उसी को ही हम ईसीजी में एक पैराग्राफ में एक लाइन लिखा है, उस एक लाइन को साबित करने के लिए मैं सारी बातें बताऊंगा, जिससे आपको रटना ये ना पड़ जाए कि why 3 leads are being used in a standard ECG which are peculiarly arranged, है ना, on the 2 respective wrist and the ankle। तो उसके जो बायपोलर लीड्स होते हैं, टोटल 12 लीड्स होते हैं, उनमें से 3 बायपोलर होते हैं, बाकी 9 यूनिपोलर होते हैं। उनको लगाने के तरीके अलग होते हैं। वी विल टॉक अबाउट द बायपोलर लीड्स ओनली। तो एक स्टैंडर्ड ईसीजी में 3 जो बायपोलर लीड्स का इस्तेमाल होता है, वो कैसे ट्रायंगल वे में अरेंज होता है, ठीक है। और उसको करने के लिए whoever the person who have developed the technique,
ही वॉज बेसिकली अ फिजिसिस्ट कम मैथमेटिशियन, वॉज नॉट अ बायोलॉजिस्ट एट ऑल। लेकिन उन्होंने हार्ट के नेचर को स्टडी किया, करीब 5 साल बैठ के पूरा समझा बायोलॉजी को, हार्ट हाउ वर्क्स। देन इट हैज एज अ फिजिसिस्ट उसने उसको पूरा एक इंस्ट्रूमेंट की तरह डील करते हुए उस मशीन को बनाया, असेंबल किया। मशीन बनाना नहीं, असेंबल किया। ऑलरेडी वही एमीटर, गैल्वेनोमीटर, पेन रिकॉर्डर सबसे जो है उन्होंने तैयार करके ईसीजी मशीन सबसे पहले बनाया। तो वी विल टॉक लेटर ऑन, फ्राइडे की क्लास उसी पे रहेगा। लेकिन उसको समझने के लिए आज हार्ट का नेचर और पूरा कंस्ट्रक्शन कैसे आपके दिमाग में टॉपिक वाइज क्लियर होना चाहिए, लोकेशन, मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड हिस्टोलॉजी। सबको आया समझ में? क्लियर? शुड आई कंटिन्यू? ओके, सो डिफाइनिंग द लोकेशन, position between lungs in mediastinal space of thoracic cavity of body coelom. Heart occupy a centralized mid-ventral. Now it's very important. कॉकरोच और ह्यूमन हार्ट के कंपैरिजन का क्वेश्चन बन जाएगा। कॉकरोच हैज गॉट अ सिंगल मिड डोर्सल 13 चैम्बर्ड हार्ट, जबकि ह्यूमन का क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है? सिंगल 4 चैम्बर्ड मिड वेंट्रल, क्योंकि वो नॉन कॉर्डेट है, ये कॉर्डेट है। ये टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन बन गया। फिजियोलॉजी, मैंने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपको हमेशा कहा, पढ़ते पढ़ते आप हमेशा एक सबकॉन्शियस माइंड डेवलप करें कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसका किसी और चीज से कोई कनेक्शन, कनेक्टिविटी है कि नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना। दैट व्हाट प्रिपेयर्स यू, ट्रेंड योर माइंड की बिना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कोई बुक ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। आप तो खुद ही खुद एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट को रिवर्स कर दो, अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा और ऐसा कर जाए तो क्या होगा, ऐसे सोच सोच के आप पढ़ते जाइए, आप खुद ही बहुत ज्यादा परपिचुएट कर जाएंगे अपने प्रिपरेशन को लेके। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट लोकेशन, और इस लोकेशन को ही जस्टिफाई करता हुआ अगला प्रेजेंटेशन। So this is the actual presentation of human heart, and
Now, if I'm not mistaken, then what I have already mentioned regarding the position of heart, that it has occupying a just simple centralized position mid ventral in between the lungs, the space where to occupy and accommodate the heart with its centralized and slight tilted towards left. So human heart occupy the space, that space is called mediastinal space. उस स्पेस को कहते हैं मीडिया स्टिनल स्पेस. एंड यू कुड सी कि जो लेफ्ट लंग है उसका जो सेकंड लोब है, दो लोब होते हैं बाइलोब्ड, वो हल्का सा डिप्रेस्ड है इस एरिया में. दैट्स कॉल्ड कार्डियक नॉच. तो ये तो लोकेशन को डिफाइन करता हो गया. रेस्ट द होल ह्यूमन हार्ट is well protected, surrounded by, now this is an arbitrary presentation, by a outermost covering layer, double membranous covering layer. That green dotted boundary represents the extra covering over the heart, which is double membranous fluid filled. The protective covering is called pericardium. इसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा. ये तो अभी एक ऑल ओवर लोकेशन, पोजीशन और उसका अरेंजमेंट यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, राइट. Dimensions of a normal heart. Indeed, you could say that we are discussing the appearance and what we call morphology. Shape alike closed fist. एक व्यक्ति के है ना बंद मुट्ठी के शेप में वो मोर और लेस होता है. साइज 12 to 13 centimeter long and 8 to 9 centimeter width. And its weigh around 250 gram in females and 270 to 300 gram in males. Rest morphological aspect could be understood by a arbitrary presentation.
सबसे पहले तो ये जो पार्टीशंस हैं जो बाहर से ऐसे दिखते हैं, गिविंग एन आइडिया एंड अपीयरेंस ऑफ कि हार्ट इज इंटरनली फोर चैम्बर्ड, तो ये जो हॉरिजॉन्टल पार्टीशन है, देयर बाय डिवाइडिंग द हार्ट इंटरनल इनटू अपर एंड लोअर चैम्बर्स, एट्रिया एंड वेंट्रिकल, दिस इज कॉल्ड कोरोनरी सल्कस। बस ये टर्म पता होना चाहिए, व्हाट इज कोरोनरी सल्कस। तो मॉर्फोलॉजिकली हार्ट इज अपियर्ड टू बी फोर चैम्बर्ड फ्रॉम इट्स आउटर व्यू बाय प्रेजेंस ऑफ। अच्छा, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, अभी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। मॉर्फो जैसे हम पढ़ रहे हैं, सबको पहले ये पोजीशन, ये बात क्लियर है, दिस इज करेक्ट अबाउट हार्ट। जस्टिफाई करेंगे धीरे धीरे। मायोजेनिक बात को जस्टिफाई करने का कौन सा पैराग्राफ पढ़ेंगे हम लोग, कंडक्टिंग सिस्टम, हार्ट इज अ, दैट विल प्रूव दिस पॉइंट। और जब हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे एट अ टाइम रेगुलर सिस्टोल डायस्टोल से दो तरह का ब्लड एक ही समय में बिना मिक्सिंग के कैसे गुजर जाता है, बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ दो सेप्टम एंड वाल्व, सेप्टम एंड वाल्व्स। उसके लिए इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है, तभी समझ में आएगा क्या होता है। और फाइनली हिस्टोलॉजी पढ़ के हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि कैसे वो एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम कर पाता है ड्यू टू दैट यूनिक लेयर, क्योंकि 90% हार्ट वॉल, 85% पूरा हार्ट वॉल किसका बना है, कार्डियक मसल्स। रेस्ट 15% एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम है, और रेस्ट पैकिंग टिश्यू जो भी उनके बीच होता है। 85% हार्ट के वॉल को थिकनेस देने वाला, वॉट एवर स्ट्रेंथ इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस respectively for systole and diastole, whatever, so it is by virtue of presence of unique histological layer called myocardium, made up of a typical muscle tissue called cardiac muscles. तो कोरोनरी सल्कस, और जबकि ये जो वर्टिकल पार्टीशन आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कोरोनरी ग्रूव या गायरस, कोरोनरी ग्रूव और गायरस। तो यहीं के यहीं कॉम्पिटिटिव विंडो, सल्काय फिशर और कोरोनरी सल्कस या एंड गायरस, कॉर्टेक्स मेडुला, तो ये कैरेक्टरिस्टिकली किन में पाए जाते हैं, ये ब्रेन में। अभी अभी आपने देखा हार्ट, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन ऑल द अबव। अभी मुझे एक और याद नहीं आ रहा, और भी है ऐसी रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, जो आएगा तो मैं फिर रिपीट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन बनाया मैंने आपके सामने, मतलब दिस इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द हिस्टोलॉजिकल सेटअप। सल्काय फिशर किस में पाए जाते हैं, ब्रेन, है ना, फोल्डिंग्स, तभी तो फोल्डिंग्स आते हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द, आया सबको समझ में। वैसे सल्कस और गायरस हार्ट को बाहर से फोर चैम्बर्ड, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये किडनी लिखा हो सकता है, एड्रिनल ग्लैंड लिखा हो सकता है, थाइमस लिखा हो सकता है, सब में पाया जाता है। जो भी ग्लैंड, जो भी स्ट्रक्चर एक्टोमिजोडर्मल ओरिजिन का है, कैसा है, ठीक है ना। तो ऑल द गिवन कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट। वन थिंग आई फेल टू मेंशन, इसको एक्चुअली यहीं लिखा होना चाहिए, आप वहीं कहीं स्पेस में लिख के रखे, हार्ट हैज अ मीजोडर्मल, कंप्लीटली विच ओरिजिन, मीजोडर्मल ओरिजिन। तो मॉर्फोलॉजिकली जो फोर चैम्बर्ड कंडीशन है वो बाहर से समझ में आता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्कस एंड ग्रूव्स या गायरस जिसे हम कहते हैं।
कंसेप्ट ऑफ ग्रेट वेजल्स हम देखेंगे। तो ये एक्चुअल जो ओरिजिनल डायग्राम है, इसमें ये रहा ये सल्कस और ये रहा गायरस, सल्कस एंड गायरस, डिवाइडिंग द हार्ट इनटू, है ना, चैम्बर, 4 चैम्बर कंडीशन। So this is the presentation of the coronary circulation. Which circulation? Now what are those great vessels? First of all, this is the superior vena cava. Similarly, this will be inferior vena cava. Posterior, anterior, superior, inferior. इसका काम है पूरा ऊपर वाले रीजन से, है ना, ब्लड कलेक्ट करके लाना। तो इसी को ही अगर मैं थोड़ा और ऊपर ऐसे ले जाऊं तो ये खुद ऐसे डिवाइडेड है। दिस इज जुगुलर वेन। क्या है ये? यानी ये ब्रेन पूरे हेड रीजन से ब्लड नीचे की तरफ कलेक्ट करके लाता है। जुगुलर वेन, एंड दीज आर सब क्लेवियन वेन। कौन सा वेन? गौर करिएगा, मैं पूरी लेबलिंग इसी तरफ कर रहा हूं कि अगर एक इमेजिनरी लाइन बना है तो हार्ट हैज मेंशन्ड एंड मेंटेन्ड इज बायलैटरल पोजीशन। कैसा पोजीशन? 4 चैम्बर्ड कंडीशन, 2 चैम्बर इस तरफ, 2 चैम्बर इस तरफ, वर्टिकल डायरेक्शन में। और हमेशा हार्ट के राइट साइड में राइट साइड किसका हिस्सा होता है? वेनस सिस्टम। किसका हिस्सा होता है वो? सबको डबल सर्कुलेशन कंसेप्ट याद आ रहा है? और इट पार्टिसिपेट विथ द राइट साइड पार्टिसिपेट विथ पल्मोनरी सर्कुलेशन। व्हाट सर्कुलेशन? बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, क्योंकि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होने के लिए भेजता है। तो ये रहा वो एट्रियम, राइट एट्रियम। इसी तरह से पीछे की तरफ जो है आपका कौन, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? राइट, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और अंदर ही अंदर पार्टीशन गया है सेप्टम। ये हिस्सा क्या होगा? अगर मैं इमेजिनरी लाइन ऐसा बना दूं यहां पर, ये होगा राइट वेंट्रिकल, तो ये क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। इंटरनल स्ट्रक्चर में मैं एक आर्बिट्री प्रेजेंटेशन से बनाऊंगा, लेकिन एक्चुअल हार्ट को कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे? इसी का क्रॉस सेक्शन काट के भी बना सकते हैं, लेकिन उससे क्या है, कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कुछ आर्बिट्री डायग्राम्स भी बनाए जाते हैं। एक्चुअल डायग्राम तो मैं बना दूं, लेकिन वो क्या अल्टीमेटली आपको समझ में नहीं आएगा, याद नहीं कर पाओगे।
ये ठीक वैसा ही है जैसे काउंटर करंट मैकेनिज्म का जो प्रेजेंटेशन एनसीईआरटी में बना है, कंफ्यूज, गलत तो नहीं बना हुआ है, लेकिन समझने जाओ तो कंफ्यूजन आता है कि कभी सोडियम क्लोराइड इधर से उधर गया कि इधर से उधर गया। तो उसको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, एक बार अगर दिमाग में आ गया तो वहीं से समझ सकते हो, नहीं तो बेटर एंड खुद प्रैक्टिस कर लो एक बार। इसलिए मैंने क्लास में आपके सामने बनाया था, याद आता है सबको, पूरा लूप ऑफ हेनले और बगल से, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये रहा डिसेंडिंग, तो ब्लड का कैसा होगा, ब्लड वेसल का असेंडिंग, और ये अगर असेंडिंग है तो ब्लड का कैसा होगा, डिसेंडिंग। और अब वो 6 काउंटर करंट कंडीशंस क्या है, एक के एक अप्लाई करके आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें। तो वैसे ही आज हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो बनेगा वो एक अलग तरीके से बनेगा, है ना, इसके क्रॉस सेक्शन में बनाऊंगा ऐसा। लेकिन एक्चुअल हार्ट इसलिए मैंने बना दिया जिससे कि आपको एक ऑल ओवर याद करने में आसानी हो, क्योंकि एनसीईआरटी में देखिएगा यही डायग्राम क्रॉस सेक्शन में बना हुआ है। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इधर अंदर होता है। ओके, तो ये प्रेजेंटेशन आखिरी है मॉर्फोलॉजी के कंसेप्ट में, क्योंकि डायमेंशन वाइज 12 to 13 सेंटीमीटर, 8 to 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना, विद द वेट एंड ऑल ओवर मेसोडर्मल सब हो गया, और अपीयरेंस वाइज वो सल्कस क्या होते हैं, गायरस क्या होता है वो बता दिया। बट फाइनली टू गिव अ मॉर्फोलॉजिकल टच, क्योंकि एनाटॉमिकली वो कहां कैसे लोकेटेड है वो हमें उसका जवाब मिल गया है। सेंट्रलाइज मिड वेंट्रल एंड ऑक्युपाइंग मीडियस्टिनल स्पेस इन बिटवीन द लंग्स, ठीक है ना, इन बिटवीन द लंग्स लैटरली एंड बिटवीन स्टर्नम एंड थोरासिक वर्टिब्रे एंटीरियो पोस्टीरियरली, उस जगह की डेफिनेशन है, वो जगह ही है बना हुआ हार्ट को। और फाइनली उसमें जो है लेफ्ट लंग ने अपने आप को हल्का सा डिप्रेस्ड कर लिया है विद कार्डियक नॉच टू गिव दैट अलाइनमेंट टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, सेंट्रल है और टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये था राइट साइड वेनस सिस्टम का पल्मोनरी सर्कुलेशन के साथ वो अपना कंसेप्ट बना। लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए गौर करिएगा, ये तो ब्लड कलेक्ट करके ला रहा है अपर एंड लोअर, और अंदर ही अंदर कोरोनरी साइनस क्या होता है, क्योंकि हार्ट खुद अपना डिऑक्सीनेटेड ब्लड कहां पोर करेगा, थ्रू अप ओपनिंग कॉल्ड कोरोनरी साइनस, वो डायग्राम में देखेंगे यहां खुलता है वो, ठीक है। अब वो अंदर ही अंदर राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक, लेबलिंग यहां कर रहा हूं मैं, है ना, ब्लू कलर से इस तरफ कर रहा हूं, लेकिन वो है इसका हिस्सा, चलिए इस तरफ ही लेबलिंग कर दे। ये दिख रहा है आपको, ये ओरिजिन इसके पीछे से, अच्छा ये एक्चुअली इसके पीछे से गुजरता है। मैं अगर चाहूं तो ऐसे मुझे बनाना चाहिए एक्चुअली, ऐसा कर दिया, ऐसा गुजरता है, आया समझ में ये, और वो उसके पीछे से टर्न लेता है, सिस्टमिक आर्क, क्लियर, सबको आया समझ में। तो पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक, और वो पल्मोनरी ट्रंक फिर आप देखिए ये और ये दोनों है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी which are exception to the concept of artery. Why? Because it has got deoxygenated कैसा ब्लड, towards lungs। सब क्लेवियल वेन क्या होता है, ये राइट आर्म पे जाएगा और ये लेफ्ट आर्म पे जाएगा, सब क्लेवियल, कॉलर बोन, क्लेविकल बोन से यहां से गुजरते हुए यहां, है ना, मतलब ब्लड यूं वापस आएगा, ऐसा सप्लाई ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन ब्लड आएगा टुवर्ड्स हार्ट दोनों तरफ से। तो वो दोनों आके इसमें खुलते हैं, ऊपर से दोनों आके ये पूरा ऊपर वाले पोर्शन यहां तक, इंक्लूडिंग दी आर्म्स यानी हैंड्स, अपर लिम्स। तो जुगुलर वेन ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द हेड रीजन, क्लेवियल वेन्स ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द हैंड्स या अपर लिम्स, दिस इज करेक्ट अबाउट द सर्कुलेशन, and they open finally through the superior vena cava। तो पूरे सप्लाई में ग्रेट वेजल्स जिन जिन पर मैं ग्रीन सर्कल कर दूंगा, दोज आर दी ग्रेट वेजल्स, उसकी डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं अभी, 1 2 3, दीज आर दी ग्रेट वेजल्स।
सिमिलरली ये दोनों क्या कहलाएंगे? जुगुलर आर्टरी सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हेड रीजन। ये दोनों वैसे ही सब क्लेवियन आर्टरी फिर वो आगे चल के ब्रैकियल आर्टरी बन जाता है, पार्टीशंस होके एरिया वाइज सप्लाई होता है, जो भी है। फिर ये रहा सिस्टमिक आर्क। और एरो देखिएगा रिवर्स में बना रहे हैं क्योंकि ब्लड आता है यहां पर। पल्मोनरी वेन और इसमें ब्लड कैसा मौजूद होगा? ऑक्सीजनेटेड। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर ग्रेट वेजल्स? बॉडी में किन आर्टरीज या किस तरह के ब्लड वेजल्स को ग्रेट वेजल्स कहा गया है? ग्रेट ब्लड वेजल्स या ग्रेट वेजल्स? दोज ब्लड वेजल्स which directly supply blood in and out, जिनका हार्ट चैम्बर्स में डायरेक्ट कनेक्शन है। तो डायरेक्ट कनेक्शन वाले कौन कौन है? 5। ऊपर से आके यही तो खुल रहा है चैम्बर में, ये खुल रहा है। आया सबको समझ में? फिर ये आ रहा है, जा कौन रहा है? पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स की तरफ ये निकलते हुए कॉमन ट्रंक की तरह ये जा रहा है, ये जा रहा है और फिर ये आ रहा है। तो दीज 5 स्ट्रक्चर्स आर ग्रेट ब्लड वेजल्स। ग्रीन से मार्किंग करके एस्टेरिक साइन। Final touch to the discussion, then we will move with the internal structure. कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने पेरिकार्डियम मार्किंग कर दिया था, अब मैं सिर्फ पेरिकार्डियम के बारे में बात कर रहा हूं। एक वाइटल क्वेश्चन उस पर बन सकता है, आगे उसका एप्लीकेशन देख लेंगे कि वो 2 रोल प्ले करता है, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। एनसीईआरटी में सिर्फ फिजिकल रोल बताया, लेकिन आगे चल के मुझे कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ाना है तो उसमें भी उसका क्या रोल है, ऐसा इट मेक्स अ कैपेसिटर लेयर एक्चुअली, फिजिक्स की भाषा में कहे तो अच्छा, उस एक चीज और बता दें यहां पर, अगर हम बॉर्डर मार्क कर दें हार्ट का, एक्चुअली इज अ ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर, बॉर्डर मार्क कर दे तो ठीक है ना? आया समझ में सबको? सो दिस पार्ट इज नोन एज बेस। और ये सिर्फ क्या है, एक मेडिकली यूज टर्मिनोलॉजीज है कि हार्ट के किस एरिया पे बात हो रहा है। ये एंटीरियर सरफेस होता है, ये इंफीरियर सरफेस होता है। ये तो मैं 2D डायग्राम बना रहा हूं, 2 डायमेंशनल। एक्चुअल हार्ट बाहर निकाल के देखेंगे तो 3D
एक्चुअल होगा वो, सबको आया समझ में? तो किस सरफेस पे बात हो रहा है? क्या बोलते हैं, अगर मैं इंफीरियर सरफेस कहूंगा, एपेक्स कहेंगे तो एंटीरियर से बात हो रहा है। तो दिस इज द बेस। ये बॉर्डर लाइन बनाने के बाद इट्स अ ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप मस्कुलर ऑर्गन, है ना, विट्स ऊपर का क्या हिस्सा है, ये ब्रॉड है, जबकि इधर आके कोनिकल, इस कोनिकल पार्ट को क्या कहते हैं? एपेक्स। तो सेंट्रलाइज स्लाइड टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, विच पार्ट? बेस की एपेक्स? एपेक्स। क्लियर? अब आप देखिए, मैंने यहां से ऐसा कट कर दिया है क्योंकि मुझे ये सिस्टमिक आर्क कट कर दिया। बाकी ये पल्मोनरी आर्टरी है यहां से, ये ट्रंक, और यहां पर था एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा, है ना। इस एरिया में इसको सिस्टमिक आर्क कहते हैं, जो कि ह्यूमन में सिंगल एंड लेफ्ट होता है, मतलब मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक, जबकि बर्ड्स में वो सिंगल एंड राइट। ये याद रखें। तो ह्यूमन हार्ट को पूरे कनेक्शन, मतलब जो पूरी कनेक्टिविटी सेंट्रलाइज है, उनसे कट करके अलग सेपरेट कर लिया। इट इज बीइंग वेल सराउंडेड बाय double membranous protective layer, where the outer layer is called as पैराइटल। हमेशा जहां भी डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग है, जितने भी ऑर्गन्स में या कहीं भी ऐसा हो, हमेशा याद रखिएगा आउटर लेयर को पैराइटल लेयर कहते हैं और अंदर के लेयर को विसरल लेयर कहते हैं। विसरा मतलब ही ऑर्गन के टच में है। नाउ दैट स्पेस बिटवीन दिस डबल मेम्ब्रेनस पेरिकार्डियम लेयर is called pericardial cavity space, pericardial space, which is occupied by या filled with a coelomic fluid, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहते हैं? filled with pericardial fluid, ठीक है। But what is pericardial fluid? It's a liquid cushion tissue, liquid cushion, है ना, tolerate mechanical shock, prevent from the friction या प्रोवाइड फ्रिक्शनलेस मूवमेंट टू द हार्ट। एक ही बात को बोलने के अलग अलग तरीके। एक लिक्विड कुशन की तरह सारे बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, ऑल आर ऑलवेज बीइंग सराउंडेड बाय कवरिंग, फाइनल कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग, और वो कवरिंग हमेशा एक ऐसे ही म्यूसिलिजिनस लिक्विड से, एक लस्सेदार, मतलब जो चिपचिपा हो, जेली जैसा हो, नॉट कंप्लीटली जेली बट क्वाइट म्यूसिलिजिनस,
तभी तो वो प्रेशर कंप्रेशन झेलते हुए रेजिलियंस देते हुए, सबको आ रहा है कंसेप्ट समझ में? तो व्हाई इट इज नीडेड, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो इट्स अ लिक्विड कुशन, चारों तरफ गद्दे जैसा एक कवरिंग कर देता है और टॉलरेट करता है, बर्दाश्त करता है किसी भी, क्योंकि व्हाट आर दोस मैकेनिकल शॉक्स, हार्ट खुद तो अपने आप में मूवमेंट कर रहा है, तो वो उन झटकों को, उन वाइब्रेशंस को भी बर्दाश्त करना और आसपास के ऑर्गन्स तक उसको ना पहुंचने देना। आया सबको समझ में? टू बियर दैट, टॉलरेट दैट। और सिर्फ वही नहीं, दिन भर क्या हमारे मूवमेंट्स कैजुअल मूवमेंट्स होते नहीं, या फॉर्मल मूवमेंट्स होते रहते नहीं? इट कुड बी हैपेंस एट एनीवन। अचानक मुझे कुछ याद आया या कुछ होता है ना, सडनली आई जंप अप यहाँ से, तो एक जंपिंग एक्शन से मैं अगर उतरता हूं, है ना, सबको मेरी बात आ रही समझ में? तो बॉडी सडनली एक्सपीरियंस अ जर्क, और वो फोर्स, वो जो जर्क है, वो ट्रेवल डाउन दी होल बॉडी थैंक्स टू दी जॉइंट्स। स्केलेटन सिस्टम आप पढ़ चुके होते तो मेरी बात तुरंत समझ चुके होते। फिजिक्स की भाषा में यही है ना कि एक ऐसा आप मुक्का मार रहे हैं, ठीक है ना, मास, वेलोसिटी, मोमेंटम जाके लगा और रिवर्स में रिएक्शन हुआ, वो फोर्स लगा, रिएक्शन, तो वो फोर्स ट्रेवल करते हुए थैंक्स टू द जॉइंट्स डिसिपेट हो जाता है वो फोर्स, नहीं तो क्रैक मारते हुए जाएगा। अरे यस और नो? नहीं आया समझ में? But that too being used by martial art experts. This property of bones is being used by, they practices those hardcore movement to get those fine cracks every day. क्योंकि after that hilarious ट्रेनिंग ऑफ थ्रू आउट द डे, जो टीडीएस हेक्टिक ट्रेनिंग के बाद शाम को 6 बजे के बाद जब वो रिलैक्स करके सोने चले जाते हैं, रात भर में वो छोटे छोटे क्रैक्स ऑसिफिकेशन से दोबारा भर जाते हैं विद इन नेक्स्ट 12 आवर्स, and the bone is more stronger than the previous. अरे आया कि नहीं आया समझ में? तो एक साइंस है स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। कौन सी फिजियोलॉजी? स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, बीपीटी के कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब कि ये रही सानिया मिर्जा, उसने ये बॉल है फेंका, कितने एंगुलर मोमेंटम से हाथ घूमेगा और ये यहाँ का सार्टोरियस मसल कितना रोटेशनल मोशन डेवलप करेंगे किस एंगल से। अरे आया समझ में? तब जाके वो स्ट्राइक प्रॉपर लगेगा। और उस दौरान जहां बॉडी का सेंटर ऑफ मास बिगड़ा, क्या बिगड़ा? बॉल ऊपर, सानिया मिर्जा नीचे। अरे कुछ आया समझ में? तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइंस। सो तो मैं, आप कुछ भी पढ़ाई करें, मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि हु विल डिसाइड द लिमिट ऑफ लर्निंग एंड गेनिंग नॉलेज? वो तो टाइम डिसाइड्स एवरीथिंग। फाइनली पॉइंट टू बी नोटेड, मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूं उसको समझे आप। तो पेरिकार्डियल लेयर या पेरिकार्डियल, ये जो पेरिकार्डियम, having that space occupying this fluid is very significant, though it is very limited and going to mobilize over here only. वहीं के लेयर्स इनको कंटिन्यूसली बनाते रहते हैं और एब्जॉर्व करते रहते हैं बाय एक्सचेंज विद द ट्रांजिट फ्लूइड कॉल्ड ब्लड। लेकिन वो फ्लूइड वहीं के वहीं रहेगा, उसकी कॉम्पोजिशन है जो हमेशा रहनी चाहिए, डिस्टर्ब ना हो। आई एम कमिंग टू दैट कॉम्पोजिशन, लेकिन वो तो उसका फिजियोलॉजिकल रोल होगा। मैं पहले एनसीईआरटी के फिजिकल एक्शन की बात कर रहा हूं। तो प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शंस generated by हार्ट बीट। सही बात है, अंदर हार्ट ऐसा बीट कर रहा है, तो जब वो बीट कर रहा है तो आप अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम देखा कि लंग्स की बीच है, तो वो ऐसे 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 मूव कर रहा है, उसका वाइब्रेशन, और वो जो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इट इज गोइंग टू जनरेट सम वियर एंड टियर। तो थैंक्स टू दैट कुशन लेयर, उसको बियर करके जो है खुद ही खुद एब्जॉर्ब, उसको लंग्स पर जाने नहीं देता। आया सबको समझ में? नहीं तो लंग्स कहेगा पहले तू धड़क ले फिर मैं सांस ले लूंगा, और फिर हार्ट कह रहा है अच्छा मैं अब रुक गया तू। तो विद इन दैट वन टाइम पीरियड यूनिट, 1 मिनट, दोनों ही ऑर्गन्स को मिलते हैं। नाउ दिस एरिया इज ऑक्युपाइड बाय 2 वाइटल ऑर्गन्स, दोनों का ही सिग्निफिकेंस है, कौन किसी से कम नहीं है। लंग्स अपना ब्रीदिंग मूवमेंट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, और हार्ट अपना मूवमेंट 70-75 टाइम्स एवरेज एक रिदम में, है ना। तो सी द फ्रीक्वेंसी, 1 मिनट में वो 70 बार मूवमेंट कर लेता है, और वही लंग्स मैक्सिमम 16 करेगा, मतलब इन एन रेस्टिंग स्टेट, है ना।
आई एम नॉट टेकिंग एनी स्ट्रेस सिचुएशन, एक लेट अस डिस्कस एवरीथिंग इन नॉर्मल सिचुएशन। तो दो ऐसे ऑर्गन्स आजू बाजू रह के, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट सिलोमिक स्पेस, फ्लूइड एंड द लेयर कॉल्ड पेरिकार्डियम। तो वैसे लंग्स के पास भी जब सर्कुलेट आप पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम क्या पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे हम लोग प्लूरा, क्या पढ़ेंगे, सेम रोल सेम कंपोनेंट, वही पैराइटल विसरल लेयर ऑक्यूपाइंग अ स्पेस फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड। कैसा फ्लूइड, वो भी वही काम करता है, लेकिन उसकी अपनी एक अलग कॉम्पोजिशन होगी। काम दोनों का एक ही है, लेकिन रोल अलग अलग होगा फिजियोलॉजिकली। पहले ये समझ में आ गया सबको? सिंपल सिंपल क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। देखो फटाफट एक्सप्लेन करके तो मैं खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि बस एक बार पढ़ लिया, अब दोबारा ये सब पढ़ना मतलब तुम्हारे पाप है, मतलब ये इसका पश्चाताप नहीं है। अरे सबको आ रहा है समझ में? आज थोड़ा समय लग जाए, लेकिन वंस ह्यूमन हार्ट with those four properties having four characteristic arrangement right from location, morphology, internal structure followed by histology, और इन चारों का पावर पैक एक साथ मिलकर हार्ट को एक पंपिंग ऑर्गन कैसे बना देता है, वो हमें कंडक्टिंग और कार्डियक साइकिल एहसास करा देगा। सबको मेरी बात आ रही समझ में? और फाइनली डेडलाइन टच टू द टॉपिक, दैट इज हाउ वी कुड अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर ऑफ हार्ट। यस, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन एंड परफॉर्मिंग इट्स रिदमिक एक्शन, लेकिन वो सही ढंग से सही दिशा में लगातार काम कर रहा है विदाउट एनी एनामोली। ये हम आज मेडिकल साइंस में व्हाट इज दैट असिस्टेंस टेक्निक व्हिच इज गोइंग टू प्रोवाइड अबाउट द स्टेटस ऑफ हार्ट, वेदर इट इज इन अ फंक्शनल स्टेट और इज शोइंग सम एरिथमिया, दैट टेक्निक इज ईसीजी, क्योंकि वो इस इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर ऑफ हार्ट को शरीर के बाहर रिकॉर्ड करके इंटरप्रीट करने में हेल्प करता है। यस और नो? और तब जाके हम डिसऑर्डर्स फाइनली चैप्टर में क्या पता लगाएंगे, डिसऑर्डर्स, जिसमें एक कैटेगरी तो देख चुके हैं कैड, बाकी हार्ट फेल, हार्ट अटैक, एंजाइना पेक्टोरिस और कार्डियक अरेस्ट, इन चारों में क्या डिफरेंस है। इसके लिए ही तो आपको हार्ट के चैम्बर्स किसका क्या नेचर है सब पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि चारों में आप सुनोगे अलग अलग डेफिनेशन। रिजल्टेंट इट इज अ कार्डियो डिसऑर्डर, हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, लेकिन है ना, हार्ट अटैक डिफरेंट बात है, हार्ट फेल डिफरेंट बात है। सबको आ रहा है समझ में? अब आपको समझ में आएगा। पेरिकार्डियल फ्लूइड इज अ टाइप ऑफ ईसीएफ, टाइप ऑफ ऑक्सिलरी फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड। 2 लीटर में से इसके चारों ओर 80 ml 90 ml का फ्लूइड इस पैक के अंदर हो जाता है। बस 2 लीटर जो ऑक्सिलरी फ्लूइड है उसमें एक फ्लूइड ये है। इन 24 आवर्स 80-90 ml का वो फ्लूइड है जो रोटेट होके बनता रहता है, एब्जॉर्ब होके मेंटेन रहता है वहां पर, ठीक है। इस टाइप ऑफ ईसीएफ। तो उससे क्या मतलब है हमें? उससे ये मतलब है कि उसकी कॉम्पोजिशन कैसे होगी। ईसीएफ में हमेशा सोडियम ज्यादा और पोटेशियम, हमेशा आईसीएफ में पोटेशियम ज्यादा, एंड दैट व्हाट गिव्स, इमेजिन करो कि ऐसे कट कर दूं मैं इंक्लूडिंग दिस लेयर, पेरिकार्डियल फ्लूइड के अंदर पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज, अंदर सोडियम है ना, तो क्या चार्ज होगा, तो इसके बाहर के सरफेस पे अंदर की तरफ इधर क्या होगा, नेगेटिव। कैसा चार्ज होगा? ऐसे ही हार्ट के बाहर वाले मेम्ब्रेन पर कौन सा चार्ज होगा, अगेन पॉजिटिव। आ रहा है सबको समझ में? हार्ट इज इन अ रेस्टिंग स्टेट, पोलराइज्ड, कैसा, और वो पोलराइजेशन सेल से लेके ऑर्गन लेवल तक बना हुआ है, सेल से लेकर, आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? हार्ट इज मेड अप ऑफ टिश्यू, कार्डियक टिश्यू, कार्डियक टिश्यू सेल्स, कार्डियक सेल्स, और एक सेल इन अ रेस्टिंग स्टेट, ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी एग्जिबिट व्हाट, बाहर पॉजिटिव, अंदर वो तो अंडर सर्टन सेमी परमिनल नेचर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डीपोलराइजेशन चेंज होते हैं स्टेटस। सिर्फ आरबीसी ऐसा नहीं शो करता, डोनांस फिनोमिना, कौन सा फिनोमिना,
हमेशा की तरह मेरा कहना है पहले ऑर्डर्स क्लियर होने चाहिए, थ्योरी पता होनी चाहिए, तब तो तुम डेविएशन, डिसऑर्डर और क्या क्या हो गया, क्या सिचुएशन, तभी तो आएगा समझ में। तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, और फिर अगर अंदर पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव बनाया तो अंदर क्या होगा? नेगेटिव, राइट? और हार्ट अंदर से कैसा है? वॉल्ड है ना, मतलब हॉलो, यस और नो? आया समझ में? अंदर से कैसा है? हॉलो। तो वही पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, और मैंने ऐसे में कट कर दिया, तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन तो करो कि कैसा स्ट्रक्चर होगा। नाउ दिस इज आर्बिट्री प्रेजेंटेशन। ये रहा पेरिकार्डियम, ये रहा, यस और नो? और ये रहा हार्ट वॉल, ये रहा बाहर या अंदर, मतलब यही पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, फिर अंदर नेगेटिव और बाहर। बन गया कैपेसिटर जैसा अरेंजमेंट। अरे यस और नो? दिस इज द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ दैट कॉम्पोजिशन, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो आज बाहर जाके कहना, जहां फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म होता है, अरे आया समझ में? वो तो क्या है समझ, अब मेरी अपनी लिमिटेशंस है, नहीं तो वो तो मैं सब बता देता क्या है नहीं है। अरे सबको आ रहा है समझ में? नाउ दिस इज द लेक्चर ऑफ पीजी क्लास, दिस इज द लेक्चर ऑफ, कोई कार्डियोलॉजी में पीजी करेगा, एमडी एमएस जो भी करेगा, तो अगर अच्छे प्रोफेसर पढ़ा रहे होंगे और रियल क्या है, काम हो रहा है, कैसे समझाते हैं, तो फिर वो ऐसा लेक्चर होता है। नहीं तो थिंग्स आर गोइंग ऑन, डिग्रियां बढ़ रही हैं, कॉलेज में भी प्रोफेसर आ रहे नहीं आ रहे, जिसको पढ़ना है वो खुद पढ़ ही लेता है, कर ही लेते हैं। everything depends on a very healthy discussion and different other aspects। नहीं तो things are okay, चलो अपने आप चल रहा है। तो लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अब तुम्हें रटना ना पड़े, तुम्हें ये क्लियर है कि हर चीज, हर चीज ऐसा पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। पता है तो नॉलेज, रीजन, नहीं पता तो मिथ, मिसकंसेप्शन, एक्सेप्शन बोलना चालू कर देते हैं। एनसीईआरटी में गलत लिखा है ऐसा बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली उसने क्या बोलना चाहा, वो उस बात को वो कैसे रख रहा है, लैंग्वेज क्या है। तो दैट्स द रोल ऑफ। तो जरा सा स्ट्रक्चर टॉपिक सुनने में ऐसा लग रहा है हार्ट, ह्यूमन हार्ट। अब आप इतना पढ़ चुके हैं, अब आपके लिए टिप ऑफ टंग, लेट अस कम टू द रिवीजन बिफोर पीपिंग इनटू द इंटरनल स्ट्रक्चर। 15 मिनट में वो भी मैं सिखा दूंगा। लेकिन ह्यूमन हार्ट रियली इट्स अ मायोजेनिक सिस्टमिक फोर चैम्बर्ड कंडीशन, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, वेल प्लान्ड विथ इट्स एनाटॉमी। अच्छा, उसकी एनाटॉमी की भी खासियत है। लोकेशन पर बार बार इतना जोर क्यों दे रहे हैं? उसको यहां भी तो रख सकते थे, वो यहां भी तो हो सकता था। अरे यस और नो? अब होता तो वैसी रीजनिंग होती। अब बायोलॉजी में बस यही है, फिर वो अलग, उसका भी रीजन होता। फिर शरीर का स्ट्रक्चर, मूवमेंट, डायमेंशन और बॉडी फीचर्स अलग तरह के होते हैं। अब हमें बायलैटरल सिमेट्री मिली है, इरेक्ट पोस्चर मिला है, ठीक है ना? तो इस पोजीशन से मोर और लेस, जिस तरह का हमारा है, लेसर सर्कुलेशन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? क्योंकि ऑक्सीजनेशन, तुरंत ऑक्सीजन होने, कम से कम डिस्टेंस कवर करना पड़े नेचर में। आया समझ में? वी आर एरोबिक रेस्पायर्स हाई मेटाबॉलिक रेट के साथ, इसलिए सर्कुलेशन में बाकी सारे सिस्टम्स की तुलना में ऑक्सीजनेशन सिस्टम के साथ हार्ट को ज्यादा नजदीक रखा गया है, लेसर सर्कुलेशन। और फिर यहां से वो यूनिफॉर्म वे से जो है ब्लड को हर तरफ पुश कर पाता है। हेंस हार्ट हैज गिवन दैट पोजीशन, mediastinals in between the lungs. That's we started the chapter today, and dimensions of a human heart normally, जो कि आपके सामने facts and figures आए थे, बस वो पता होना चाहिए, क्योंकि हर चैप्टर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी, अभी अभी ये पता चला आपको, ऐसी रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देखेंगे, है ना? कुछ डायमेंशंस बताएं तो एक क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाए कि ह्यूमन फीमेल ओवरीज एलमंड शेप्ड, इतने इतने सेंटीमीटर का, ये फलाना। अब वो आपको याद होना चाहिए, है ना? किडनीज आर 500 ग्राम वे, गलत। 120 से 170 मतलब विद इन 200, मतलब सबको मेरी बात आ रही है समझ में? इसलिए याद, सब कुछ नहीं, सिर्फ जितने दिए हैं डायमेंशंस एनसीईआरटी में उतने ही याद कर लो, बस ज्यादा थोड़ी पढ़ने के लिए कह रहे हैं। वैसे ही हार्ट के बारे में बता दिया यहाँ पर।
सब हो गया ये। और फिर हमने मॉर्फोलॉजी देखा, मॉर्फोलॉजी में ग्रेट वेजल्स क्या है, पूरा सप्लाई कैसा है, सबको आ गया समझ में। And at last, before peeping into the internal structure, the outermost covering which is being peeled off, अगर इसको निकाले तब heart made up of three successive layer, epicardium, myocardium and endocardium। वो तो हिस्टोलॉजी है, जिसमें से मेन हमें किससे मतलब है, मायोकार्डियम, क्योंकि बाकी तो बस फिनिशिंग लेयर है, कवरिंग लेयर से बाहर और अंदर, पैकिंग लेयर। मेन फंक्शनल जो वॉल्स को क्या देता है ना, एक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, दैट्स द मायोकार्डियम लेयर मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। वो हिस्टोलॉजी में देखेंगे। लेकिन ऐसे पूरे वॉल्स फोल्ड करके अंदर ही अंदर चार चैम्बर्स बनाते हैं, और चारों चैम्बर्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, किसमें क्या क्या मौजूद है, बस ये याद रखना है। और इन अरेंजमेंट्स के साथ विथ हिस्टोलॉजी फिर वो कैसे काम करता है, दैट्स द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, कार्डियक एक्टिविटी कॉल्ड कार्डियक साइकिल। कंप्लीट कर लिया सबने ये। तो इस डायग्राम का यही सिग्निफिकेंस है। तो बीच में ये क्या कंडक्टर्स होंगे, क्या होंगे, इंसुलेटर नहीं होगा, क्या होना चाहिए, तभी तो वो वेव ऑफ इंपल्स रिदम जो हर कुछ इंटरमिटेंट टाइम पे जो जनरेट होता है, जिस फ्रीक्वेंसी से वो ट्रेवल करते करते सरफेस पे आते हुए इतने माइन्यूट मिनी वोल्ट्स में होते हैं, मिली वोल्ट्स में, कि आवर नेचुरल रिसेप्टर्स कांट परसेप्ट इट, लेकिन सरफेस तक आता है चार्ज। और उस चार्ज की वजह से, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट होता है, किस डायरेक्शन में, अरे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू द थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है। अब जिस जिसका मैग्नेटिक फील्ड मैच करता है, अरे आया समझ में, हाँ ये जल्दी आया समझ में, देखो कुछ बोला भी नहीं मैंने। So internally, human heart is being characterized by four chambers.
Class, so in continuation of this diagram, morphologically outward view of the heart is basically a triangular pyramidal shape, but this arbitrary presentation internally reveals that heart has got two types of partitions. है ना? One is the vertical partition dividing the heart into right and left. Right and those that partition is known as septum. But septum itself is thin and thick. Thin and in the upper chamber. Internally, the chambers are due to the presence of interatrioventricular septum या atrioventricular septum हम जिसे कहते हैं. ठीक है, वो दो तरह के होते हैं यहाँ पर. But complete heart is divided into four chambers by two types of partition, the vertical and horizontal. The vertical partition called septum is thin and thick. यहाँ पर इसको कहते हैं interatrial septum. यहाँ कहते हैं इंटर, ये थिन होता है और ये थिक. तो आप कोई भी किताब की लिटरेचर पढ़ेंगे, अल्टीमेटली आप डायग्राम से ही देख देख के याद करें. दैट विल मोर हेल्प यू आउट रादर पीपिंग इनटू एनी बुक फॉर द लिटरेचर. So as usual, these are the respective pulmonary artery,
superior vena cava and its opening of superior vena cava. लेकिन जो वैल्व है वो वैल्व इसके जस्ट ओपनिंग पे ना होकर थोड़ा पीछे है ना, थोड़ा पीछे जाके, इसलिए हार्ट में इनकी गिनती नहीं होती, थोड़ा पीछे जाके यहां पर है. And see the direction of the valve, it will open downward. This is called Haversian valve. Haversian valve. आया सबको समझ में? Haversian valve. लेकिन ओपनिंग पे जो वैल्व यहां पर पाया जाता है, first of all, this is the opening of inferior vena cava, which is controlled by a Eustachian valve, है ना, Eustachian valve है यहां पर. Now this opening is called coronary sinus, and it is being again guarded by Thebesian valve. कौन सा valve? Thebesian valve. तो right chamber, right atrium of human heart is characterized by 3 openings. First of all, अगर एक general बात करें, the whole heart, human heart being 4 chambered, divided internally into upper and lower chamber, atria and ventricles, respectively, by presence of atrioventricular valves, which are of 2 types. There are total 4 types of valves, 4 types, and you could say 6 in number valves. How many? Number wise 6 and types 4. वो लिस्टिंग अलग से मैं करूंगा किसके और किसके बीच, यही तो क्वेश्चन आएगा. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और रिलेटेड सब कुछ पढ़ने के बाद व्हाट इज करेक्ट इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट, या क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ये मैं अगले क्लास में ही साबित करूंगा. 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड व्हाइल पासेस थ्रू डबल सर्कुलेशन, व्हाट विल बी इट्स सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट फ्रॉम हार्ट. अब ऑप्शंस बना रहेगा, तो शुरू कहां से होगा? राइट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन. आया सीक्वेंस समझ में? सब कुछ पढ़ने के बाद क्वेश्चन पैटर्न में हमेशा कहता हूं, और हर चैप्टर में मैंने आपको ऐसा बताता रहा हूं कि यूरिन बनने के बाद व्हाट इज द डायरेक्शन सीक्वेंशियल फ्लो, स्पर्म बनने के बाद फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट में वो कैसे, किस डक्ट सिस्टम से, इंट्राटेस्टिकुलर, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर, सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको. चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम, सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम नहीं पढ़ाया है मैंने, उसमें oogenesis और स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं बताया, लेकिन काफी कुछ टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल टेस्टिस ही तो मेन है, बाकी तो सब एसेसरी डक्ट है, कौन क्या करता है, क्या सिक्रीशन करता है, तो फटाफट वहां कवर हो जाएगा वो चैप्टर, क्योंकि मेन टॉपिक तो मैं इसमें पढ़ा ही चुका हूं. यस और नो? तो वैसे ही मतलब इस चैप्टर में अभी हम जो बात कर रहे हैं ये सब ऐसा पढ़ के याद रखना. सिर्फ वेल्व्स के बारे में, तो कौन सा वेल्व किस ओपनिंग पे मौजूद है? व्हाइल ब्लड कलेक्ट्स टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंटरिंग इनटू द ब्लड, इट इज गार्डेड बाय, वेल्व्स के नाम लिखे रहेंगे तो आंसर होगा अस्टेचियन वेल्व, क्योंकि लोअर पार्ट बोल रहे हैं. आया सबको समझ में? विच ऑफ द गिवन वेल्व इज नॉट फाउंड इन हार्ट? बाकी 3 कोई नाम लिखे होंगे और ये नाम लिखा होगा, तो हेवर्स, इसलिए ये पता होना चाहिए. सबको आ रहा है समझ में? तो राइट एट्रियम इज कैरेक्टराइज्ड, या अभी अभी राइट एट्रियम आने से पहले ठीक है, अपर लोअर हो गया ड्यू टू दिस, एंड मोर ओवर ईच chamber itself is divided into 2 due to presence of septum. Atria is divided due to interatrial septum, thin, it is thin, whereas ventricles are divided into respective ventricles right and left due to presence of thick septum, interventricular septum. कौन सा septum?
ये नाम है बिल्कुल ऐसा पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा तब इन शब्दों का इस्तेमाल होगा, और जो वेव ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स ऑफ बीट है, वो ट्रेवल करने का एक खास पाथवे है। ऐसा नहीं है कि यहां से जनरेट होकर वॉल में फैल गया तो इस वॉल से नीचे उतर के आ जाता, नहीं, इट कांट। व्हाई? नाउ दिस इज द रीजनिंग क्वेश्चन। एक होता है लर्निंग करके कुछ चीजें याद रखना, मेमोराइज करना। अक्सर मैं आपके सामने ये बात रखता हूं कि कुछ चीज होती है कि यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, लेकिन कुछ चीजें होती है कि लर्न करने की जरूरत नहीं, एक समय के बाद रीजनिंग करना आना चाहिए। याद जो करना है वो तो अभी मैं प्रेजेंटेशन से, डायग्राम से याद करा ही रहा हूं आपको। ठीक है, नाउ लेट अस बिगिन इन एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न। कैसा पैटर्न? Let us discuss heart in an anti-clockwise pattern, beginning with right atrium. Right atrium characterized by three openings. Opening of superior vena cava and inferior vena cava, with the opening of a small opening of heart itself, coronary sinus, out of which two are guarded by respective Eustachian and Thebesian valve. दिमाग में रहना चाहिए डायग्राम, कौन कौन सा valve कहाँ है। At last, it receives, during a cardiac cycle, one heartbeat, right atrium receives a definite amount of blood, respective unit of blood, whatever that, deoxygenated blood from whole body, from upper, lower, and every aspect. सही बात है. And with respective contraction, with respective systole contraction, it pushes the blood towards ventricle via through opening of tricuspid valve. कौन सा valve? Three flap है ना, थ्री कप शेप फ्लैप, ट्राइकस्पिड वाल्व। आया सबको समझ में? एवरीवन? तो आगे बढ़ने से पहले तो between right and left, right and atria and ventricle, which valve is present? Atrioventricular. Which atrioventricular? Tricuspid. कैसा होता है? ट्राइकस्पिड। अब आते हैं हम, हाँ, राइट वेंट्रिकल। जस्ट
So below the valves, ये है coronary pads, which are well holded, supported by elastic, made up of elastic connective tissue called chordae tendineae. ठीक है, ये स्ट्रिंग्स जैसे जो दिख रहे हैं आपको, एक दे दो, अभी दे रहे हैं आपको, है ना, दे रहे हैं। तो कोरोनरी पैड्स, कॉर्डी टेंडिनी, यहां पर सपोर्ट, इनको खींचने के लिए, इनको ना यहां से यहां पर विड्रॉ करने के लिए जो है ये मौजूद है इलास्टिक, एंड दीज कॉर्डी टेंडिनी फर्दर आर सपोर्टेड एंड मूव्ड बाय स्पेशल मसल बंडल्स कॉल्ड पैपिलरी मसल्स। तो एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन कि विच गिवन कंपोनेंट कैरेक्टराइज्ड इन बाय प्रेजेंस इन वेंट्रिकल्स एंड एब्सेंट इन एट्रिया, आंसर होगा कॉर्डी टेंडिनी एंड पैपिलरी मसल्स। वेंट्रिकल चैम्बर में कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद है, मूवेबल स्ट्रक्चर्स, जो कि यहां पर नहीं है। तो अभी आगे चल के जब मैं कार्डियक साइकिल के स्टेजेस बताऊंगा तो उसमें स्टेटमेंट्स दूंगा, वहां पर लिखवाऊंगा ऐसे करके आपको कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन प्ले लेस रोल ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल ओवर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। व्हाई? क्यों? क्योंकि बात करेंगे वहां पर, अभी मैं समझाऊंगा बात, लेकिन वो सब चीजें समझने के लिए पहले हार्ट की इंटरनल सेटअप पूरा आपको ऐसा याद रहना चाहिए। सारी चीजें मैं मेसअप नहीं कर रहा हूं एक साथ। आज तो आप बिल्कुल अच्छे से पहले ये याद कर लीजिए, फिर हिस्टोलॉजी पढ़ा बताऊंगा अभी, और उसके बाद कंडक्टिंग सिस्टम, आज यहीं तक ही। इन सबको इस्तेमाल करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग विल स्टार्ट द क्लास एंड विल गो थ्रू द कंसेप्ट ऑफ, है ना, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, कार्डियक साइकिल, ईसीजी, एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। साथ में ब्लड प्रेशर, हार्ट साउंड, ब्लड पल्स क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, सारे फंडामेंटल्स एक साथ चलेंगे उसमें। So today we are characterizing first of all heart not only by its location, morphology, followed by internal structure. The internal structure reveals the heart to be four chambered by presence of a vertical and horizontal partition, thereby making the heart with four chambers respectively, beginning with right atrium characterized by three openings, out of which two are being guarded by respective valves, Thebesian and Eustachian. Moreover, they open into the into the right ventricle by intermediate flap-like structures, valves of control called tricuspid valve. और उन valves को कंट्रोल और ओपन करने का काम एक रिट्रैक्टल स्ट्रक्चर जो नीचे सपोर्टेड है, दैट इज कोरोनरी पैड सपोर्टेड बाय कॉर्डी टेंडिनी एंड पैपिलरी मसल्स, ये दोनों जगह होते हैं। And at last you could see the chamber is characterized by, जो यहाँ के वॉल स्मूथ होते हैं, कैसे होते हैं? स्मूथ। लेकिन वेंट्रिकुलर वॉल के जो क्या बोलते हैं इनर लेयर है, दे आर नॉट स्मूथ। अब इसकी लेवलिंग में इस वाले चैम्बर में कर दे रहा हूं, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ थोड़ा सा ऐसा फ्लिकरिंग बनाया है इधर ऐसा। These are trabeculi. These are trabeculi, ऐसे रफ सरफेसेस होते हैं, ठीक है, जिसके उसके वजह से ये अच्छे से यहाँ एंकरेज हो पाते हैं एंड दे आर मोर एबल टू जनरेट दैट पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, ऐसे करके वो स्प्रेड हो पाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो खिंच के स्प्रेड हो पाते हैं, फिर सिकुड़ जाते हैं, इसलिए ऐसे रफ सरफेस मौजूद होते हैं, ट्रबैकुली कहते हैं इन्हें। नाउ नेक्स्ट इज लेबलिंग, इस तरफ कर रहा हूं। रिस्पेक्टिव चैम्बर्स हैव गॉट सम बेस ऑफ ट्रंक, तो इसे कहते हैं बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक,
जो ब्लू कलर का है बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, ये, और ये रेड कलर से जो बना है ये अंदर ही अंदर बेस ऑफ एओर्टा। होता ये पूरा एओर्टा है, लेकिन इस तरह के टर्न की वजह से ये सिस्टमिक एओर्टा या आर्क कहलाता है। ठीक है, these are as usual pulmonary vein, again both the base of aorta and pulmonary trunk are guarded by semilunar valves. Which valves? Semilunar valves. The point to be noted, I have already mentioned, the whole heart internally is characterized by 4 types, 6 in number valves. What they are? Eustachian valve, Sebacean valve, 2 हो गए, tricuspid and mitral valve, oblique bicuspid. लेफ्ट साइड पे होता है बाइकास्पिड और राइट साइड पे होता है ट्राइकास्पिड, ये भी याद रखना जरूरी है। तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने? 3 पैटर्न, टोटल 4, पैटर्न 3, एंड द 4th पैटर्न टाइप इज सेमिलुनार, टोटल 2, टोटल 6। आया समझ को, सबको समझ में? तो अपने आप में वैल्व्स ऑफ हार्ट ही अपने आप में एक टॉपिक है। और कौन सा वैल्व कहां खुलता है, किस डायरेक्शन में? Tricuspid valve from right atria to right ventricle, bicuspid from right ventricle to left ventricle, semilunar valves of pulmonary artery towards lungs, towards, और जो semilunar of base of aorta towards the body, towards the, लेकिन एकमात्र valve exception, जैसे ये exception है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ये आर्टरी होने के बावजूद भी इसमें वैल्व मौजूद है। ये मैंने आर्टरी और वेन के डिफरेंस में लिखवाया नहीं था, मैंने एक ऑर्थोडॉक्स स्टेटमेंट लिखवाया था, सबको याद आता है? एक्सेप्शनली इन हार्ट विच आर्टरी हैज गॉट द प्रेजेंस ऑफ वैल्व। अब आया समझ में? सारे ग्रेट वेजल्स के नाम लिखे होंगे सारे, उसमें से आपको टिक करना पड़ेगा बेस ऑफ एओर्टा या आर्टरी, सिस्टमिक आर्क, सिस्टमिक आर्टरी। समझ लेना, एक ही चीज को बोलने के तरीके हैं, सिस्टमिक आर्क, सिस्टमिक आर्टरी या एओर्टा। सबको आ रहा है समझ में? एवरीवन, एंड इवन ये दोनों ही, क्योंकि आर्टरी तो ये भी है और आर्टरी ये भी है, लेकिन कौन सा ऐसा आर्टरी है जिसमें वेल्व मौजूद है एंड एक्सपीरियंसिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड? कैसा ब्लड? क्योंकि ऑल वेल्व्स ऑलवेज फेस व्हाट टाइप ऑफ ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड, चाहे वो ये हो चाहे हो। इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा था। सबको आया समझ में? थोड़ा सा बोलते ना प्रिसीशन, बारीकी से बात को पूछ ले तब आपको आंसर कैसे चूज करना है। सबको आ रहा है समझ में अच्छे से? तो ब्लड का मूवमेंट विद इन द हार्ट फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल टुवर्ड्स पल्मोनरी आर्टरी, फ्रॉम टुवर्ड्स लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन, ओपन्स इन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट, ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय 4 ओपनिंग्स। हाउ मेनी ओपनिंग्स? 2 पेयर्स ऑफ ओपनिंग्स, 2 लेफ्ट लंग से और 2 राइट लंग से, जो इसके पीछे से आता है, जो इस डायग्राम में नहीं दिखाया जा रहा है। या फिर मैं अगर यहां से बना भी दूं तो अंडरस्टूड है कि वो इसमें नहीं खुलेगा। सबको आ रहा है समझ में? यहां सो फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस बनाया ही नहीं जाता है, अंडरस्टूड है कि वो पीछे से आके खुल रहा है। और उनका काम है टू पोर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन द ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर ये यहां से पुश करेगा ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये भेजेगा सिस्टमिक। तो वो बात मैं यहां ही साबित कर चुका हूं,
राइट साइड, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड कैसा होता है हमेशा? आर्ट्रियल सिस्टम। क्या होता है? और आर्ट्रियल सिस्टम होते हुए वो किस में पार्टिसिपेट करता है? पल्मोनरी है, तो यहां पर क्या होगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेकिन इस सिस्टमिक सर्कुलेशन में हार्ट ऑर्गन और आर्टरी इन्वॉल्व होता है, लेकिन उस सिस्टमिक सर्कुलेशन को डेविएट करते हुए, चैलेंज करते हुए कोरोनरी सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन? जहां हार्ट आर्टरी, हार्ट आर्टरी होना चाहिए था, हार्ट आर्टरी ऑर्गन, फिर वेन के थ्रू वापस हार्ट, डबल सर्कुलेशन। लेकिन यहां हार्ट खुद ही सप्लायर है और खुद ही रिसीवर है, एंड हेंस सच कोरोनरी सर्कुलेशन इज अ बाईपास सर्कुलेशन अलाइक पोर्टल। लेकिन पोर्टल सर्कुलेशन किसका हिस्सा है? वेनस सिस्टम। किसका हिस्सा है? सबको ये डायग्राम क्लियर है बिल्कुल? और एट लास्ट thickness of chamber wall, thickness of chamber wall, atrial chamber are relatively thin. Atrial chamber are relatively thin, and ventricular chamber walls are thick comparatively. Ventricular chamber walls are thick comparatively. Again डायग्राम उस बात को रिवील कर रहा है. Indeed intern septum पतला होता है और यहां पर thick septum. Clear? Now the point is ये अपनी जगह बात सही है, बट गुगली the thickest chamber wall is in left ventricle. Left ventricle. ये तो फैक्ट जैसा स्टेटमेंट हो गया, रट लिया दिमाग में. रीजनिंग, assertion, reason. Why? It is the relative movement of blood from an area to another. किसके ऊपर कितना रेलिवेंस है बॉडी ब्लड को मूव करने का. The atria has to push next to the ventricle in a very shortest distance. अरे आया समझ में? इसको इस तरह से समझा हमारे डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से कि अक्सर गांव में आपने देखा होगा गुलेल मारते हैं ना ऐसे, तो नजदीकी डिस्टेंस पे होंगे, गुलेल छोटा होगा, उसका स्ट्रैप भी पतला होगा, इतना ही खींचेगा इतना दूर मारने के लिए जितना वो कॉन्ट्रैक्शन टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए काफी है. डिस्टेंस ज्यादा है, थोड़ा बड़ा गुलेल होगा, स्ट्रैप भी थोड़ा मोटा होगा. अरे यस और नो? ज्यादा खींचेगा वो? अरे यस और नो? So they have to relatively produce the force of contraction during systole just to push relatively the blood from the respective atria to the next ventricle in shortest distance. और जैसा कि आज क्लास के शुरू में मैंने थोड़ा सा हिंट किया था कि ड्यूरिंग द कंप्लीट कार्डियक साइकिल एट्रियल सिस्टोल डजंट प्ले मच रोल इन ब्लड पंपिंग. क्यों? क्योंकि उसको जो ब्लड जितना भी पंप एक गिवन साइकिल में 0.8 सेकंड में उसको जो 0.1 सेकंड मिलता है, एट्रिया को कितना मिलता है? पूरे 0.8 में से 0.1 सेकंड को इस्तेमाल करता है. नेक्स्ट क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला. वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट हाउ हार्ट एवरी डे एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ प्लेज 1 मिनट गेम शो विद अस. और जहां उसका खेल खत्म हम हुकअप हो जाएंगे. अरे यस और नो? लट गए.
अरे आया कि नहीं आया समझ में? Until and unless the heart perform its rhythmic action with an up and down movement. Up and down movement मतलब we experience it in form of graphs. 5 relative PQRS जो waves बनते हैं, that shows the undue movement. And until and unless it go an up and down movement, we are straight. और वो straight हो गया P sound, we will go up and down. अरे yes or no? कुछ आया कि नहीं आया समझ में? तो कैसे अचानक मेडिकल साइंस में वो एक सिचुएशन जनरेट होता है, द डॉक्टर कम आउट ऑफ द सर्जरी रूम और द क्लिनिकल आईसीयू एंड से आई एम मिस्टर शर्मा, आई एम सॉरी. बाकी सब लोग दुनिया में बोलते हैं तो ठीक है, अच्छा लगता है. डॉक्टर सॉरी बोल दे तो बस हो गया काम. अरे यस और नो? तो पॉइंट टू बी नोटेड, अभी अभी जो मैं बात रख रहा था आपके सामने, जो पूरे इंटरमिटेंट टाइम पीरियड ऑफ 0.8 सेकेंड में इस रिस्पेक्टिव दोनों को उसी इंटरवेंट टाइम को मिलता है और 0.1 सेकेंड में उसको ब्लड यहां से यहां पहुंचा देना है. लेकिन उस जितना भी ब्लड यहां से यहां पहुंचता है, 100 ml से 75 ml पुश होता है. यहां कितना पुश होता है और 25 यहां रह जाता है. दैट इज द फैक्ट. तो 75 का 70% ब्लड तो पैसिवली चला जाता है बिना ताकत लगाए. अब यही तो मैं साबित करूंगा. दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ पी वेव. कौन सा वेव? और जिस दिन ऐसा ना हो जहां 20% जाएगा और 80% पुश करना पड़ जाए, तो हार्ट इज इन प्रॉब्लम. यानी पी वेव की फ्रीक्वेंसी प्रॉपर नहीं है, काम नहीं कर रहा वो. देयर आर मेनी सच इंटरप्रिटेशन. बात देखिए, मैंने हमेशा आपको क्या कहा कि बॉडी के जो ये वर्कआउट्स हैं, दोज आर बेसिकली सम पैरामीटर्स. उनके अपने एक रेंज है. क्या है? रेंज. तो बात को आप समझिए कि जितना भी ब्लड इसको पुश करना होता है, उसका 70% तो अपने आप ही चला जाएगा पैसिवली. 30% ही उसको ताकत लगाना पड़ता है. हेंस द वॉल्स आर कंपैरेटिवली रिलेटिवली थिन as compared to ventricular wall. But among the 4 chambers, क्योंकि ventricular thick बोला है comparative here, but among the 4 and among the ventricles the thickest is, क्योंकि इसको भी ब्लड कहां पुश करना है ड्यू टू इट्स यूनिक एनाटॉमी टू अ लेसर सर्कुलेशन. शुरू से ही मैं मेंशन करके चल रहा हूं पल्मोनरी. अरे आया समझ में? हेंस इनके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा टुवर्ड्स लंग्स. लेकिन इसको तो उसी 0.3 सेकेंड में, कितना, थोड़ा टाइम 3 टाइम्स ज्यादा ले लेगा. वो 0.1 लेते हैं, ये 3 गुना. लेकिन दोनों को तो समय बराबर मिल रहा है, तो स्ट्रेंथ किसको ज्यादा बनाना पड़ेगा? तो थोड़ी देर के लिए सोचो कि जो वेव ऑफ इंपल्स एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सम मिलीवोल्ट, 15 मिलीवोल्ट, 20 मिलीवोल्ट, अरे जितना भी है, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा? नहीं. इनको कम एनर्जी जाएगा. अरे यस और नो? उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा इसको जाएगा. यस और नो? और सबसे ज्यादा एनर्जी किसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? अरे आ रहा है समझ में? यह है एक्चुअल एक्सप्लेनेशन जो आज तक तुमने कभी सुना ही नहीं होगा ना समझा होगा. तो व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स कि जो भी सोर्स एनर्जी है अनइक्वली बटे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आउट ऑफ द सिस्टम वो डिसिपेट नहीं होना चाहिए. वहीं कहीं ना कहीं. यस और नो? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. इट इज ओनली ट्रांसमिटेड. इट इज ओनली ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसमिटेड. सबको आ रही मेरी बात समझ में? मतलब अराउंड ये जो मैंने ये जो बनाया है, दिस इज इनथोवेन्स ट्रायंगल लॉ वेयर द बाइपोलर लीड्स विल बी फिक्स्ड, है ना, इनटू द 2 रिस्पेक्टिव रिस्ट एंड एंकल, मैक्सिमम सरफेस एरिया कवर करते हुए. नहीं तो कमर में यहां लगा दिया और यहां लगा दिया तो भी तो बात एक ही है. अरे आया समझ में? अरे हस वो तो ठीक है, वो तो ट्रेडमिल पे खड़े करके दौड़ा रहे हैं तो वैसा लगा देंगे. किसी को लिटा के या सिंपल रेस्टिंग पोजीशन पे बिठा के भी ईसीजी लेंगे तो बस यहां लगा देंगे 2 लीड, यहां लगा देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और तीनों के बीच एक एक एमीटर. तो यहाँ का एमीटर और यहाँ का, यहाँ है ना, एक जगह 2 मिलीमीटर, 2 क्या बोलते मिलीवोल्ट आएगा, एक जगह 3, तो यहाँ 5 आना चाहिए. मतलब समझा रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अरे आया समझ में? 5 2 3 8 5 13 मिलीवोल्ट. और तीनों तरफ से ईसीजी कैसा निकलना चाहिए? PQRS,
है ना, दो तरफ से तो सही निकला, एक तरफ थोड़ा निकला, तो उस एरिया में चैम्बर में कोई खराबी है। अब वो कैसा है फिर इंटरप्रिटेशन। देयर आर 52 वेज ऑफ इंटरप्रिटिंग ईसीजी, 22 को तो मुझे पता है, बाकी तो सीखना पड़ेगा। अरे आया समझ में? तो तुम अगर डॉक्टर, तुम्हें कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तो यू शुड नो टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ हार्ट। 2 साल बैठ के वही सिखाया जाता है, व्हाट द हार्ट सेज। आज तक किसी को नहीं समझ में आया। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं ये तो तुम्हें आ गया है समझ में, एवरीवन। तो मतलब देखो, हर चीज एक दूसरे को क्या करना चाहिए, एंटिसिपेट, सपोर्ट, कॉम्प्लीमेंट। ये अरेंजमेंट अपनी जगह है, और इस अरेंजमेंट में फिर वो कनेक्शन, एंड दैट कनेक्शन गिव्स कंडक्टिविटी, अ यूनिक वायरिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट इटसेल्फ। उसके लिए उसने नर्वस सिस्टम से कोई मदद नहीं ली, उसने खुद अपने ही कार्टल्स को मॉडिफाई करके नोडल टिश्यूज क्या बना लिया। यानी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है। सबको आ रही मेरी बात समझ में? ये तो हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर। लेकिन हार्ट मसल्स हिस्टोलॉजिकली 3 लेयर्स में किसी भी जगह से वॉल को कट करूंगा, फ्रॉम आउटर टू इनर, एपी, मायो एंड एंडो। रिस्पेक्टिव मायोकार्डियम लेयर, ठीक है, मसल्स तो होंगे ही कार्डियक मसल्स, लेकिन उनके बीच पैकिंग टिश्यू भी फिलअप रहते हैं, क्योंकि ब्रांचिंग टाइप का है ना, तो थोड़ा बहुत जो स्पेस है वहां भरा रहता है। क्या वहां भरा रहता है? वही कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है, और वो इंसुलेशन दे देता है। क्या दे देता है? थोड़ा बहुत, इट हैज अ टेंडेंसी टू गिव इंसुलेशन। इसलिए इसलिए हार्ट के हर एक मसल्स तक, मतलब मायोकार्डियम में जो है क्या पहुंचना चाहिए, कंडक्शन होना चाहिए। तो जो इंपल्स ट्रेवल करेगा, इसलिए इंटरकैलेटेड गैप जंक्शंस, कम्युनिकेटेड जंक्शंस उन्होंने खुद बना लिए। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्ट मसल, विच इज नॉट फाउंड इन एनी अदर मसल टाइप ऑफ द बॉडी। बोले सर वो हटा देना, उसकी जगह कुछ कंडक्टिंग मटेरियल, लेकिन सबके अपने अपने लिमिटेशन। हार्ट के इसको स्ट्रेंथ भी चाहिए, और स्ट्रेंथ तो डेंसिटी से ही आएगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से आएगा, है ना। मतलब उससे वो फायदा मिलता है, पैकिंग कर दिया, हार्ट मसल्स अपनी जगह स्ट्रेंथ के साथ मूव कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जो जिस इंसुलेशन को वो थोड़ा बहुत प्रोवाइड करता है, उसको कॉम्बैट, मतलब उसको खत्म करने के लिए जो है, हार्ट ने अपने क्या बनाए हैं, नोडल टिश्यूज, और उनसे इंटरनोडल पाथवे जो पूरे हार्ट मसल्स में फैले हुए होते हैं, जिससे कंडक्शन में कोई दिक्कत ना है। लेकिन फिर यहां से यहां इसलिए नहीं पास हो पाते, क्योंकि बीच में से वही ये जो वेल्व्स बनते हैं ना, ये पूरी तरह डेंस फाइब्रस किसके बने होते हैं, प्योरली डेंस फाइब्रस, कवर्ड बाय एपिथेलियम, कवर्ड बाय गिविंग इंसुलेशन, गिविंग। तो अचानक यहां से यहां तक आके फिर यहां से डिसकंटिन्यूटी आ जाती है मायोकार्डियम में, अंदर ही अंदर। तो कोई बात नहीं। बोले सर फिर ये भी तो सेप्टम किसका बना है, पूरा डेंस फाइब्रस। तो बोले फिर यहां से यहां जाएगा कैसे? यही तो कंसेप्ट है, एसए नोड, एवी नोड, इनके बीच क्या है, इंटरनोडल पाथवे, वहां से ट्रेवल करेगा, फिर बंडल ऑफ हिज और पुरकेंजे फाइबर्स। तो the atrial contraction with impulse doesn't pass to the ventricles directly because of fibrous insulation of the heart layer, heart walls। ये utmost level of question है। तो यही सब बातें मुझे सबको आ रहा है समझ में। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टोलॉजी, और उसको पढ़ते हुए कंडक्टिंग सिस्टम। तो आज घर पे जाके फिर वही ऐसे नोट पेस मेकर, वो तो मैं नोट्स बनवाऊंगा ना आपको, ऐसे नोट, एवी नोट, ऐसे नोट पेस मेकर, है ना, रिदमिक, बहुत जल्दी जल्दी वो, इसलिए वो पेस मेकर है, क्योंकि इंपल्स तो ये भी जनरेट कर सकता है, इंटरनोडल भी करते हैं, लेकिन उन लोग इतना स्लो करते हैं, उसके कई गुना ज्यादा ये करता है, तब तक यहाँ पहुंच जाएगा, इसलिए इसको बनाया गया है पेस मेकर। बाकी तो सिर्फ पेस सेटर है, कंडक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कंडक्ट, और ट्रांसमिट करके पूरा फैला देते हैं टू द वेंट्रिकुलर वॉल। और बीच में एवी नोड एक एम्पलीफायर, मतलब यहां से यहां तक आते आते जो भी रिडक्शन होता है उसको बढ़ा के, क्योंकि दिस वॉल्स आर क्वाइट थिक, उनको ज्यादा एनर्जी बिल्कुल रिदम से पहुंचना चाहिए, इसलिए बीच में एक पेस सेटर है, एवी नोड। सबको आया समझ में? फिर वही, ये कहां मौजूद है, इसकी क्या पोजीशन है, सबको आ रहा है समझ में? मतलब कंडक्टिंग सिस्टम वाला पैराग्राफ पढ़ने के बाद क्या क्वेश्चन आएगा, बस यही सब। या फिर एक डायग्राम स्कैन कर देंगे और लेबलिंग करके पूछ लेंगे कि इसको हटा देंगे एक्स को तो क्या होगा, वाई पे अगर यहाँ रोक देंगे इंपल्स को, जो थोड़े से क्लासी टच क्वेश्चन। बस क्या होगा, सिस्टोल विल बी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एब्सेंट,
है ना। अगर एवी बंडल कट कर देंगे तो बताइए ईसीजी में। अब ब्लेंडिंग पैटर्न क्वेश्चन कि एवी नोड कट गया बीच में, डिसकंटिन्यू हो गया, मतलब डैमेज हो गया या हमने एक्सपेरिमेंटली काट दिया। अरे बात तो एक ही सिचुएशन जनरेट हुआ ना। अब बताइए ईसीजी में कौन सा वेव डिस्टर्ब होगा, खत्म मतलब डिसअपियर हो जाएगा। सबको आ रहा है लॉजिक समझ में। तो आज मैं अचानक तुम्हारे सामने एक ट्रेलर दिया है, नेक्स्ट क्लास तुम घर से अच्छे से रीडिंग करके आना ईसीजी पैराग्राफ तक। सबको आया समझ में। नाउ आई विल कंडक्ट एट अ रिदम। अगली क्लास बिल्कुल एक फास्ट चलेगा, 11 बजे तक पढ़ाऊंगा, 11:45 तक। अरे आया सबको समझ में, विद अ 1 कप ऑफ मिल्क। ओके, थैंक यू।